At the beginning of my journey in Canada, I had no job, no means to survive. So I had nothing. So I just decided to do Uber. I chose walking because I had no bike at that time. I had no orders and I was unsuccessful over there also. I was really frustrated. I was giving on myself. इन कनाडा आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. People find it in temporary relationship and I don't think it's a bad thing even though if you are having a temporary relationship with someone. Still advise myself that don't give up. Hello and Sat Shri Akal to all the viewers of Just Punjabi. Today we are here with the new show, new beginning, new podcast called The Canadian Dream. ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਤੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. You must be wondering why the Canadian Dream, why this name? Because quite often times we come here with a bag full of dreams and sometimes we're able to fulfill it and sometimes we're not. So what to do in order to fulfill that dream? Just for that reason, we have launched this show called The Canadian Dream for you. We will be inviting guests from all over Canada, including refugees, immigrants, international students, and many more. And today, we have with us an international student, and his name is Shubham Singh Gangola. And he has been studying at York University. He's doing public relations and he's also done paralegal. Let's talk to him and know more about his journey. Very warm welcome to the show, Shubham. How are you? I'm feeling good. A little bit nervous, but it's good. So you don't have to be nervous. We'll make sure that this interview goes really fine and you're comfortable here. Okay, so let's dive deep. Without further ado, I would like to ask you my first question: why Canada? For me, it's different. Maybe for other people, it's different. But for me, it's like I believe Canada is a land of opportunity, and I have been through a lot in here. Before coming to Canada, I had a brief conversation with my dad to whether to go to Canada or not. I have said him that even if you want me to work here, I can do well, but I will take some time because in India you have to be persistent and it will take time to reach certain heights. But in Canada, I told him that it will be not that easy for me, but I can be something. And over in here, the standard of living is good. So I had a brief conversation with him, and then we decided to move here. Okay, so according to you, Canada has better standard of living. Is that correct? Yeah, I believe so. So what is it that makes Canada better than India? There are a lot of aspects if you consider it. First of all, the standard of living for like fresh air. We have good air index in here. The technology advancement, Canada is more advanced than India. I'm not degrading India in any way, but uh, India is developing nation and Canada is already developed, right? So Canada is good and it has good money. So everybody needs money, you know. So this was also a reason I came here, and standard of living is good in here. I see. Now, without wasting any more time, I'd like to dive deep and ask you this very important question. Like, we all come here with wounds and scars, right? We all have our stories to share. But I would like to ask you that one day when you felt that this country is so hard, I mean, I cannot do this anymore. Like, we all have those days, right? So, what was that one particular moment or that one day for you when you realized, I don't want to do this anymore? I just want to go back? So for me, there are a lot of days, like countless, where like almost gave up on my dreams and everything here. But if I have to specify one day, so it will be at the beginning of my journey in Canada. I had no job, no means to survive. So I had nothing. So I just decided to do Uber. So in Uber, if you know about it, there are two things, or more than two, but there are walking Uber and a riding Uber. So I chose walking because I had no bike at that time. So when I was doing Uber by walking, I had no orders just because they don't prefer walking Uber guy because it delays time and everything. I had no orders and I was unsuccessful over there also. So I just clicked on
riding option and told the Uber that I have a bike, and I started receiving orders. So first order I received, it was like $15, and it means a lot for me. For an international student who has no means to survive, $15 is a huge amount. So I took that order regardless of seeing how long it will take to reach me to the destination and everything. I took that order. It was my first time delivering the order for Uber, right? So I went to the store. It was McDonald's. I still remember it. I grabbed the parcel and I went to my destination. And then I realized it was like 5 kilometers away and I have to walk. And at that time, it was mid of February. It was really cold and it was pouring at that time. And I started walking. It was a long way. I knew that I'm going to be late, so I started running with the order on my hand. The rain was pouring over there, and I arrived late, but obvious. So when I reached there, the customers complained about me that where's your bike and the food is really cold. They complained to Uber about it, and they deducted my money. So the order of $15, I received only five, and at that time I lost all hopes. I was really frustrated. I was giving on myself. The weather was bad. I didn't know where I was because I was new in Canada, and I don't know how to go home. So by hook by crook, I went to home. I slept over there, and from that onwards, I decided not to do Uber anymore. Okay, so that was one of the hardest moments. Yeah. Like, you decided on doing Uber, which is actually a livelihood for a lot of people here. And there are so many types of Ubers, like Uber Ride, Uber Taxi, right? And ride share, and so many ways. And I believe you're not the only one who would have thought like, yeah, Uber can be one of the ways to earn money, and it actually discourages a lot of people. Sometimes people start doing Uber and their cars get stolen, right? And they get attacked, and sometimes for petty reasons, people complain about them. But yeah, it's good that you came out of it and you finally made a decision that you don't want to do Uber. Maybe Yeah, in future you'll give it another thought, another I chance. don't think so. Okay, so the bad experience is the bad experience. Yeah. Okay, so we have talked about a little bit about the journey and the first couple days, like how you felt finding a job and everything. So I would now like to ask you about relationship part. Like, how is dating life here in Canada, and how people presume relationships here? How do people connect with each other? Do they connect with apps, or do they connect like in terms of like social, or do they meet in colleges? Like, how is it? And if they meet, what is the scenario of dating life here in Canada? So I've been here for past 1.5 years, and I have experienced not a lot, but quite enough. So though I have not dated myself in my life, but in here I have seen people dating a lot. I believe it is really easy to date here in Canada rather than in India, but the thing I believe is it's temporary here. I have seen guys dating girls for like few months or vice versa, and I believe it's not as good that we used to do in India. Uh, though I have not been into such thing, but I have witnessed a lot of people. If you ask me, for me, friendship is more important than relationship. I have I was fortunate enough to have good friends, and even though it was my roommate, it was my colleagues, my classmate, everyone was good to me. And for me, friendship is more important than relationship. And about the dating app also, so people date a lot during this time and everything. And we've been asking so many questions about relationship, about lifestyle, about how it feels, पहला दिन कैसा रहा, जॉब कैसी रही, worst experience क्या था. एंड ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह के relationships यहाँ पे लोग रखते हैं. And you mentioned that people do know that the relationships are temporary here. But why do you think that they still hold on to the temporary thing? So what I believe, people
दे नो दैट द रिलेशंस आर टेम्परेरी, बट फिर भी वो इसके साथ लगे रहते हैं बिकॉज दे फील अ सेंस ऑफ कंफर्ट इन देयर. पीपल फील, यू नो, इन कनाडा आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे लैक करता है. तो people find it in temporary relationship, and I don't think it's a bad thing, even though if you are having a temporary relationship with someone. अगर आपको उसमें कंफर्ट मिलता है कुछ समय के लिए भी, तो मुझे नहीं लगता वो गलत है. और so as for me, even if you are in a temporary relationship, it's not bad. Yeah, so according to you, like people hold on to temporary relationships for sake of escaping the loneliness that this country offers you. I mean, they know that this is not going to last, but they feel like, yeah, instead of facing it all alone or all by themselves, they'll just simply, get into it and feel like this temporary comfort is better than the long lasting relationship, because it's really hard actually to find relationships there that last for a longer period of time. And also you mentioned that friendships have been great for you in this country. So how did you find friends here? Like, what has friendship offered you so far, and now how did you make friends, and have they been welcoming, have they been nice, or you've also had your like bad experiences with friends as well? So yeah, I was fortunate enough to have good friends. चाहे मेरे वो रूममेट्स हों, चाहे मेरे कलीग्स हों, चाहे मेरे वो क्लासमेट्स हों, everyone was good. पता नहीं मेरी ये किस्मत अच्छी है या पता नहीं क्या कहें, पर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ. तो चाहे मेरे रूममेट्स लगा लो, आई वॉज हैविंग जॉब लाइक एट द बिगिनिंग. मैं ट्रेनिंग में जाता था. ट्रेनिंग वॉज अनपेड विच इज अनलॉफुल इन हेयर, बट स्टिल इधर थोड़ी एक्सप्लोइटेशन चलती है. तो मैं ट्रेनिंग में जाता था दोपहर को 3 बजे से रात के 12 बजे आता था. जब मैं 12 बजे आता था, आई वॉज अवेयर दैट माई रूममेट विल मेक फूड फॉर मी. तो मैं रात को आता था थका हारा. इट वॉज माई फर्स्ट जॉब, फर्स्ट डे, एंड व्हेन आई केम होम द फूड वॉज रेडी. सो यू नो, ये छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, और मेरे लिए इन्होंने बहुत चीज़ें की हैं. चाहे वो क्लासमेट्स हुए, मैं बहुत काम किया स्टार्टिंग में. आई वॉज वर्किंग रियली हार्ड. सो मेरे को इतना कुछ टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पूरी कर सकूं. मेरे क्लासमेट्स इतने अच्छे थे दैट दे डिड ऑल द असाइनमेंट्स. उन्होंने बस मेरा नाम साथ में लगा दिया. सो या, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ. I don't think you should reveal this कि आपके काम आपके क्लासमेट्स ने किया है, but that is actually really nice कि this is actually very true कि यहाँ पर कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड स्पेशली रूममेट्स. लाइक अगर आपके रूममेट्स अच्छे हैं तो आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ईजी हो जाती है. जैसे शुभम ने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ कनाडा, जो कि इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है. यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयट किया जाता है. लाइक एक्स्ट्रा काम कराकर मिनिमम वेज पे उनको हायर किया जाता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा लेबर वर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको सामान उठाना पड़ता है, काफ़ी टाइम काम करना पड़ता है, ओवरनाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं. पर उसके बाद जब इंसान थका हारा घर आए और खाना बना मिल जाए, तो उससे बढ़िया फीलिंग कोई कुछ नहीं हो सकती. पर्सनली स्पेशली जब किसी की मदर्स विजिट करती हैं, हमारे साथ मेरे साथ ही पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स की मदर्स ने विजिट की, और जब हम काम से थके आ जाते तो घर पे खाना मिल जाता था. तो ये एक लग्जरी है यहाँ पे, क्वाइट लिटरली. तो moving forward, like that you mentioned that you had good like friends and good support system, which is really nice. I'm really happy for you. But एक ऐसा होता है जब हम इंडिया से आते हैं तो एक एक बबल होता है दिमाग में कि वहाँ जाके ऐसा होने वाला है, इस तरह होने वाला है. और कभी कभी हमें पता भी होता है कि यहाँ पे लाइफ ऐसी है, राइट, क्योंकि हमें लोगों से सुना होता है. और अब तो कनाडा के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, ठीक है. तो व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू केम हियर एंड यू फेल्ट कि ये तो वैसा है ही नहीं? व्हेन डिड योर बबल बर्स्ट इन रियलिटी? लाइक कब ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और ये अब हो गया? सो फॉर मी इट वॉज रियली डिफरेंट. मेरे को थोड़ा सा आइडिया था कि कनाडा कैसा होएगा, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मेरे ब्रदर यहाँ पे है. And in India also, I was living separate. I was not living with my parents when I was working. I was living in Chandigarh. तो वहाँ पे मेरे को सब कुछ अपने आप करना सीखना पड़ा था. So I thought that कनाडा में क्या मुश्किल है, चलो कनाडा चलते हैं. वहाँ यहाँ पे भी अकेले रहें, वहाँ पे भी अकेले रहेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा. But when I came here, I had faced a lot of things.
उन सारी चीज़ों से मुझे पता चला नहीं, लाइफ यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। आप इंडिया में आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, यू कैन गो टू योर नेबर एंड आस्क फॉर हेल्प, बट इन हेयर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। आपके पास आप हो और आपके नेटवर्क्स हैं, तो मैं तो कहूँगा नेटवर्क अच्छे से बनाएं, और जितने जितने ज़्यादा आप दोस्त बना सके उतना बढ़िया, बट ट्रस्ट दोज पीपल हु आर गुड। So yeah, the bubble burst moment was the moment which I talked to you earlier about, right? When I was doing Uber, and at that time I had lost all hopes. मेरा बस quit करने का मन कर गया था अब चलो इंडिया वापस, but still my friends supported me at that time also, and they told me that it is a temporary thing, you can come over it. So for me that was my bubble burst moment. ओके, यू मेंशन कि आप इंडिया में सेपरेटली रहते थे, पेरेंट्स के बिना रहते थे, और यहाँ पे आके तो पेरेंट्स हमसे कितनी दूर हैं। तो इंडिया में अकेले रहना और यहाँ पे अकेले रहना में बहुत फर्क है ना? Yeah. क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि लोग थोड़ा अपने में रहते हैं, राइट, और इंडिविजुअलिज्म है यहाँ पे। और इंडिया में तो अगर हम किसी का दरवाजा नॉक करें नेबर का, उनसे जाके हेल्प मांगे तो हेल्प मिल जाती थी, है ना? तो उसी से मेरा अगला सवाल जुड़ता है कि कल्चरल शॉक यहाँ पे लगता है आके, राइट, कि वहाँ पर तो ऐसा होता था इंडिया में और यहाँ पे ऐसे। तो आपके लिए व्हेन वाज दैट पॉइंट और मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज अ कल्चरल क्लैश, कि ये डिफरेंट है वहाँ से? तो मेरे लिए क्या है, मैं इट्स बिन 1.5 ईयर, तो मैं अभी भी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, मैंने अभी भी बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो अगर कल्चरल शॉक की बात करें, मेरे को 2 चीज़ें लगेंगी जो कल्चरल शॉक है मेरे लिए। फर्स्ट, इन हेयर पीपल डोंट सेलिब्रेट टुगेदर। हमारे दिवाली है, दिवाली में वी वेलकम एवरीवन विद ओपन हैंड्स। इनके यहाँ पे क्रिसमस है, दे सेलिब्रेट क्रिसमस इन क्लोज डोर्स। So I feel it really strange, you are celebrating a festival, but only with yourself, not with the people among yourself. तो ये एक मेरे को एक डिफरेंस लगा, जो कि एक नेगेटिव चीज़ लगी मेरे को। कमिंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव थिंग, जो मेरे को लगी, इधर आप अगर काम कर रहे हो, अगर आपने 5 मिनट भी ज़्यादा काम किया है ना, you'll be get paid for it. When I clock in and clock out, उसके बीच का जितना भी टाइम है मेरे को सबके पैसे मिलते हैं। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जो कि इंडिया में इस चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन है। आपको आपका एम्प्लॉयर कहेगा कि ये प्रोजेक्ट आज रात तक कंप्लीट होना चाहिए, ऑफिस बंद हो चुका है 7 बजे तक, आप लगे हो वहाँ पे 11 बजे तक, और वो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, उसके लिए आपको पे नहीं किया जाएगा। तो ये एक चीज़ इंडिया में नेगेटिव लगी, यहाँ पे पॉजिटिव लगी मुझे। तो ये कल्चरल शॉक मुझे लगा। तो मतलब कहने का है कि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करो तो पैसे मिलते हैं। और कोई भी आप मतलब, although I've mentioned कि exploitation है, like it's hidden, it's there, but at the same time जो honest people हैं, they're honest, like they will pay you no matter what. आप अगर कोई भी काम करो तो आपको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। तो अब ये सारी सवाल मैंने आपसे पूछे, तो I'd like to ask you one more question, कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर हमारे पास हर टाइम लोग थे, राइट? इंडिया में हमारी फैमिली है, फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नहीं तो एक्वेंटेंसेस है, यहाँ पे भी होता है, बट फिर भी एक अपनापन होता है, राइट? अपनी कंट्री, अपना 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 फील होता है। पर यहाँ पे हमें बहुत बार अकेले रहना पड़ता है। देयर इज लाइक सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस ऑफ लाइक जस्ट बीइंग बाय योरसेल्फ, बट दिस इज ब्यूटी इन बीइंग बाय योरसेल्फ, दैट यू लर्न सो मच अबाउट योरसेल्फ। सो what did you think you learned about yourself in those times when you were all by yourself or when you were alone? क्या सीखा आपने उससे? Although I had good friends here, मेरे roommates थे, सब कुछ ज़्यादा, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि I was alone, but जितना भी मिला, I realized the loneliness, the fear in the loneliness. तो उस टाइम पे आई वॉज रियली अनप्रोडक्टिव, तो मेरे को अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा था। देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने देखा कि आई वॉज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट माई जॉब वॉज टू ग्रीट पीपल, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग with them, like brief conversation, and over that time I was starting learning their culture and everything. So उस सब से मैंने जो आइसोलेशन थी उससे मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप में वर्क किया to improve myself.
Okay, so isolation gave you motivation to work on yourself. Yeah, you can say that. Okay, so that's a really nice part. And एक और मेरा सवाल ना लड़कों से होता है कि जब तुम इंडिया में होते हो तुम लोग खाना खुना बनाते हो नहीं बनाते हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि लड़के खुद से खाना बनाएं, ठीक है? तो व्हेन यू वर इन इंडिया, तो यू यूज्ड टू कुक और नॉट? सो आई टोल्ड यू, मैं अलग रहने लग गया था। जो जब मैं अलग रहता था तो मैंने सीखा खाना बनाना खुद ही। तो खाना बनाने की जर्नी मेरी इंडिया से ही शुरू हो गई थी कुछ हद तक, बट कनाडा में सब कुछ खुद सीखा। और पता नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी दैट आई हैड अ रूममेट हु वाज अ शेफ, हु इज अ शेफ। तो उससे भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी एंड आई थिंक आई कैन कुक गुड एंड आई वांट टू लाइक, मैं अपनी मम्मी को खाना खिलाना चाहता हूँ मेरे हाथों Oh, का। that's so sweet. We have been talking about his journey, everything that he has faced, the good and the bad. What do you think is the easiest way if you had to tell an international student who is just arrived, जो अभी just land हुए हैं और of course उनको आते ही job की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो what would be your take on it कि this is the easiest way to find a job? तो आप उनको क्या suggest करोगे? ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ पे लैंड किया था दिसंबर 2022 में। मेरे पास जॉब नहीं थी 3 मंथ्स तक। अप्रैल में मेरे को जॉब मिली बिकॉज यू नो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया जॉब लेने के लिए भी। आई वॉज थ्रोइंग रेज्यूमे एवरीवेयर पॉसिबल। तो किस्मत की बात रही, एक गैस स्टेशन से मेरे को इनविटेशन आ गया था कि वी वांट टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, तो आप इस टाइम पे हमसे मिलिए। तो मैं बहुत खुश हुआ। दो आई वॉज वर्किंग गुड इन इंडिया, गैस स्टेशन जैसी चीज़ भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो मैंने यहाँ पे काम, इंटरव्यू वगैरह दिया, ही लाइक मी एंड ही हायर्ड मी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम मैंने गैस स्टेशन में काम किया, आई वॉज ग्रीटिंग कस्टमर। थोड़ा सी वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी सी कमांड बढ़ी, तो आई स्टार्टेड मूव फॉरवर्ड। मैंने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बनाया बिकॉज आई रियलाइज दैट सिक्योरिटी जॉब्स, द सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स हैज़ मोर इनकम देन यू नो वर्किंग इन अ गैस स्टेशन। तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाया, स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ इन सिक्योरिटी कंपनीज, और फॉर्चुनेटली इनफ मैं एक कंपनी में हायर हुआ जहाँ पे मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी जॉब मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रही क्योंकि वहाँ पे आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। सो और उसकी पे भी अच्छी है। तो मैं अगर सलाह दूंगा न्यू कमर्स को, तो आई विल से दैट ट्राई टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अगर आप इंडिया में हो अभी तो कुछ स्किल्स वगैरह सीख के आओ जिससे आपको यहाँ पे जॉब लेने में आसानी हो। और दूसरा, यहाँ पे लाइसेंसिंग की बहुत वैल्यू है। तो अगर पॉसिबल है, आपके पास मनी है स्टार्टिंग में, तो लाइसेंस में इन्वेस्ट करो जिससे आपको जॉब लेने में आसानी हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक यू सेड कि जब आप यहाँ आए तो 3 महीने जॉब मार्केट, आई वंडर 2022 के स्टार्टिंग में और 2023 की स्टार्टिंग में जॉब मार्केट इज़ एक्चुअली स्लो, बिकॉज उस टाइम पे एक नया रूल आया था कि जो बच्चे हैं वो 40 आवर्स तक काम कर सकते थे। हाँ, तो और जो नए बच्चे आए उनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई थी बिकॉज जो पुराने बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो 40 आवर्स तक काम कर सकते थे। तो जो जॉब मार्केट थी वो सैचुरेटेड थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जो नए बच्चे आ रहे थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी। आपने बोला कि गैस स्टेशन से यू गॉट कॉल एंड देन यू इंटरव्यूड एंड देन यू मेंशन कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी उसमें यू फाउंड कि इसमें ज़्यादा पैसे हैं और कम मेहनत है। बट ऑल्सो ये सजेस्टेड कि जब आप इंडिया से आओ तो स्किल सीख के आओ। तो व्हाट इज़ बेटर, टू कम हियर एंड टू नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन गेनिंग न्यू स्किल्स और जस्ट get into a job that is easy or is paying more? आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर जैसे कि आप इंडिया से स्किल सीख के आ रहे हैं, लेट्स से आपको बाल काटने आते हैं, ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू कट हेयर, आपके पास कोई जॉब नहीं है, अपने रूममेट के बाल काट के $10 कमा लीजिए, वो स्ट्रॉन्ग इन इट। सो स्टार्टिंग आपकी ऐसे हो जाएगी, बट आई थिंक as a student, right? So I think if you have a license, you will have a upper hand and you will get more income rather than others. So मैं गैस स्टेशन में काम करता था, I was earning bare minimum. But जब मैंने सिक्योरिटी की कंपनी स्टार्ट करी तो I was earning good.
तो मेरे हिसाब से दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके पास लाइसेंस भी है तब भी आपको मुश्किल तो आएंगी जॉब लेने में, बट आपके पास कुछ स्किल हैं तो आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ इनकम तो अर्न कर ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी हैं। आप यहाँ पे आए स्किल्स के साथ, कुछ करें, अपने इनकम जनरेट करें, उसके बाद लाइसेंसेस बनाएं और अच्छी जॉब में लीजिए, और स्टडीज़ के बाद तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो yeah. Okay, so to conclude this, you were saying कि it's better to learn something before coming to India, before coming to Canada from India. Like कई लोग अगर बार्बर का वो कोर्स करके आता है, हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करके आता है, for girls it can be नेल आर्ट, राइट, और सलोन का या मेकअप का या फिर एनीथिंग दैट इज़ अ स्किल, बिकॉज इट इज़ हाईली वैल्यूड हेयर। आपके कोई भी स्किल है, आप घर से काम कर सकते हो, घर से क्लाइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। मुझे याद है जब मैं 2022 में यहाँ पर 2021 दिसंबर में आई थी, 2022 में यहाँ पे थी, 23 यहाँ पे थी। तो 23 में जब मैं एक बार घर गई थी तो मैं वहाँ से बेकिंग की क्लासेस लेकर आई थी। तो बेकिंग की क्लासेस जब मैं लेके आई तो यहाँ पर आके मैंने 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 15-20 केक्स बनाए थे, और सेल्फ रिलायंस हो गया था मेरा उस टाइम पे। मेरी खुद के लिए 1 महीने की इनकम जनरेट हो चुकी थी। बट द थिंग वाज कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिसमें थोड़े एफर्ट्स कम हो, इनकम ज़्यादा हो, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है। अभी अगर मैं सोचूं, मैं वर्क परमिट पे हूँ, और अगर मैं सोचूं कि अब मुझे ये जॉब सस्टेन करनी है तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मैं कर पाऊंगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम है। बट एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक there's एनी हार्म टू डू एनी सॉर्ट ऑफ जॉब, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो गैस स्टेशन हो, चाहे वो इवन जेनेटर हो, बिकॉज यहाँ पे एक टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट साथ साथ अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने बेकिंग सीखी, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्किल। अगर कोई बंदा इंडिया से आता है, नेल आर्ट सीख के आता है, इट्स अ स्किल। कोई हेयर सलॉन या हेयर ड्रेसिंग का काम सीख के आता है, इट्स अ स्किल। तो वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पे आकर लेटर ऑन हेल्प करती हैं, बट धीरे धीरे विद टाइम करती हैं। एकदम से आप उन सब चीज़ों से इनकम जनरेट नहीं कर पाते अनलेस यू हैव अ वेरी लार्ज सर्कल। लाइक बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, फटाफट अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो कि हाँ जी मेरी ये सर्विस है, मैं ये कर रही हूँ, या मेरी ये सर्विस है, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह की जॉब के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी हाथ में आता है कर लो, बट एट द सेम टाइम डू नॉट गिव अप। डू नॉट थिंक कि दिस इज़ अ रियलिटी, या बस यही करना है यार, ये क्या हो रहा है, मुझे ये जॉब क्यों करनी पड़ रही है। दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी पार्ट ऑफ योर लाइफ। Eventually you come out of it and you find a better place to be in, and you find a better job to be in. So do not give up. And thank you so much, Shubham. You've shared so many beautiful insights today. And before, like, last question to you would be, after asking everything that we have asked, ki one advice to an international student, what would be that one piece of advice जो तुम अपनी younger self को या फिर एक नया international student जो यहाँ आ रहा है उसको देना चाहोगे? तो मैं अगर मैं काश पास में जाके अपने आप को कुछ सलाह दे सकता तो आई विल से दैट डोंट गिव अप। स्टिल आई एडवाइस माई सेल्फ दैट डोंट गिव अप। और बस ये जो फेस है, जो बैड फेस हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये चलते रहेंगे। जस्ट मेक गुड फ्रेंड्स, हैव गुड टाइम, एंड बुरी चीज़ों को बस भूल जाओ। Alright, it was great talking about all these things, but now moving forward to the most important question, and it is about your brain health, your mental health. तो अपनी mental health को यहाँ पर ठीक रखने के लिए, ख़राब ना हो दिमाग, उसके लिए तुम क्या steps लेते हो, क्या करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो? बिकॉज यहाँ पर मेंटल हेल्थ का मतलब इम्बैलेंस हो जाना, चीज़ों को ख़राब हो जाना और टेंशन में आ जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना इज़ वेरी ईजी। छोटी से छोटी चीज़ों में परेशान कर देती है। लाइक जो एक्सपीरियंसेस मैंने कभी इंडिया में नहीं किए थे, जैसे कि जॉब, अगर जॉब से निकाल दें या जॉब ना मिले, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें एक अलग तरह की टेंशन क्रिएट करती है और इसका मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इस स्ट्रेस को तुम कैसे मैनेज करते हो? सो अकॉर्डिंग टू मी हेल्थ इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं मेरे दिमाग में वेटेज भी दूँ ना, मैं हेल्थ इशू को सबसे ऊपर देता हूँ, पैसे को उसके बाद देता हूँ। ओके। तो हाँ, हेल्थ इशू इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा भी है, आप उससे अपने मेंटल हेल्थ आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो जब मैं कुछ ऐसा डिप्रेस फील करता हूँ,
मेंटल इश्यूज आपको आते ही तब हैं जब आप लोनली हो, आप अकेले हो। तो मेरे को जब भी ऐसा कुछ इशू फेस होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देता हूँ। आई कॉल टू माई फैमिली इफ पॉसिबल, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, आई ट्राई टू प्लान कुछ। एक टाइम था मैं एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ प्लान करता था, जो फ्रेंड्स अवेलेबल होते थे उनके साथ घूमने जाता था, नहीं तो हाउस पार्टीज। तो मेरे लिए इस प्रॉब्लम में ना पड़ने का सिंपल रीज़न था टू हैव अ गुड नेटवर्क, और उस नेटवर्क, उस फ्रेंड सर्कल के साथ आप अगर अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, तो आप उस डीप होल में कभी जाओगे ही नहीं। ओके। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमारे कोई दोस्त नहीं है, सो डोंट वरी, जस्ट टीवी इज हियर, आई एम हियर, आई एम गोना पिक योर कॉल्स रियली सून। हम इस पर जरूर जल्दी ही लाइव कॉलिंग शुरू करेंगे, देन यू कैन टॉक टू मी right through the camera. Any problem you guys can share. But thank you so much for sharing this insight. And moving forward, I would like to talk about the festivals, right? अब आप जैसे आपने कहा कि पार्टीज, कल्चर, लोगों को मिलना जुलना, हमारे इंडिया में त्योहार त्योहार होता है, राइट? हम जैसे यहाँ पर क्रिसमस है, यू सेड कि पीपल सेलिब्रेटेड बिहाइंड द डोर्स लाइक विद देयर फैमिली मेंबर्स, बट इट इज नॉट एज like wow, it's Christmas, right? I mean the weather is Christmassy, the decorations are Christmassy, but still people lack that enthusiasm कि Christmas है, right? but जब दिवाली है, हमें एक महीने पहले से एक्साइटमेंट होने शुरू हो जाती है, घर साफ होने शुरू हो जाते हैं, पेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कल्चर को किस तरह से प्रिजर्व करो, यहाँ पे किस तरह से तुम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हो? फॉर मी फेस्टिवल्स आर रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनसे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपका पास्ट जुड़ा हुआ है, और दे आर इम्पोर्टेंट। तो मैं जब भी कुछ ऐसा फेस्टिवल आने वाला होता है, सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ फेस करता हूँ कि आर दे सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल और नॉट। यूजुअली एवरी बिग फेस्टिवल दे सेलिब्रेट। आई स्टिल रिमेंबर आई हैव सेलिब्रेटेड होली इन माय कॉलेज, एंड ड्यूरिंग दैट होली आई हैव मेड फ्यू फ्रेंड्स जिनको मैं पहले से नहीं जानता था। तो सेलिब्रेट करो जहाँ पे आपको पॉसिबल है। जहाँ पे कहीं कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहाँ पे आपका कॉलेज सेलिब्रेट नहीं करता, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि आप अपने आप में सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो भी एक ऑप्शन होता है आपके लिए। दिवाली की बात करें तो लास्ट ईयर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी। दे इनवाइटेड मी टू देयर हाउस। हमने अच्छे से आरती वगैरह की थी, उसके बाद हमने सेलिब्रेट किया था। वी हैड अ फीस्ट ओवर देयर, वी डांस एंड वी एंजॉयड अ लॉट। सो वो मोमेंट्स अभी भी मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो फेस्टिवल आर इम्पोर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट देम। And it's actually easy to celebrate here because not with the same zest or enthusiasm, but यहाँ पे celebrate करता है। That's very true because हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में यहाँ पर equally weightage देते हैं हमारे फेस्टिवल्स को भी। अब आप छोटे छोटे फेस्टिवल्स की बात करो तो वो ऐसे नहीं है कि हाँ जी आज जो मंगलवार का व्रत है तो सेलिब्रेट करेंगे यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं होता। लेकिन दिवाली, होली, ऐसे ऐसे सेलिब्रेशंस होती हैं। तो उसके बाद अब कनाडा इज नॉट ऑल बैड, राइट? हमने मतलब कितनी सारी बातें करी जिसमें कभी कभी ऐसा लगता है ओ लोनलीनेस हो गई, ओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट कई चीज़ें, कई फेस्टिवल्स जो यहाँ के भी वो बहुत अच्छे थे। जैसे यहाँ ईस्टर होती है, अभी विक्टोरिया डे निकला, ठीक है, तो वो लॉन्ग वीकेंड्स, अब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे कार्निवल्स होंगे, राइट? तो वो सब में भी एक अलग तरह का फन है। और जब मैं फ़न की बात करूँ, हमने वर्स्ट डेज, बेस्ट डेज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, ये सब के बारे में बात कर ली, पर what was one of the funniest moments that happened to you here in Canada जो आप publicly share करना चाहोगे? ऐसे बहुत इंस्टेंस रहे हैं मेरी लाइफ में कनाडा में पिछले 1.5 साल के अंदर ही, बट द मोस्ट फन मोमेंट स्टिल राइट नाउ इज वन टाइम व्हेन आई वाज सेलिब्रेटिंग विद माय फ्रेंड्स। हम अपार्टमेंट में जस्ट कैजुअल दारू पी रहे थे, बट if you have watched How I Met Your Mother, in that there was a saying, Ted Mosby used to say it, vomit free since 93. तो वैसे ही मैं फूक में आके कह रहा था vomit free since 97 because I have never puked in my life after drinking. तो मेरे दोस्तों को मेरी वो अकड़ तोड़नी थी। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा एक फ्रेंड शेफ है, तो he made some कॉकटेल्स और मॉकटेल्स व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। उसने बनाए, बियर डाली, पता नहीं क्या क्या मिक्स किया,
I was drinking, I was super drunk, and I was dancing at that time. And you know what? At that time also I was feeling really good. उसके बाद पता नहीं उसने कुछ gummies मेरे को दी. I still don't know what they were, and I was chewing them 2-3 at a time. पता नहीं उसके बाद क्या हुआ. I was in another dimension. I was talking something else. Everything was moving really slow. It was something else. Then they took me outside to get some fresh air. I didn't know what I was doing. After that, we came home. They lie me down on the bed, and I was like, I still didn't puke. And at the moment, I thought that I puked on myself. I puked everywhere in the home. Oh. But the puke that I did, my friends cleaned it all. जब मैं सुबह उठा सब कुछ क्लीन था, तो मैंने कहा कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड फ्रेंड्स. तो मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि उन्होंने मेरे को साफ किया, मेरी प्यूक को साफ किया, पूरे घर को साफ किया. सो दैट वाज अ रियली फनी मोमेंट फॉर मी. ऑफ कोर्स आई थिंक जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि गमी बेयर्स में क्या था. और तुम कैसे अनदर डायमेंशन में चले गए और चीज़ें स्लो और फास्ट कैसे हुई. दिस इज एक्चुअली अ वेरी a move that the friend would do, right? And this is such a nice thing. Now you are puke free since 23. Since 23, yeah. 23. 23. अभी तक नहीं किया, मैं करूँगा. अब ये घमंड दोबारा न टूट जाए, अब तो टीवी पे चले जाएगी ये बात. तो जरा बच के रहो, ठीक है, इस बात से अपना. और मुझे ये बातें ना बहुत फनी लगती है कि लड़कों में ये सब चीजें चलती रहती है. लड़के अपने ही दोस्तों की ड्रिंकिंग लिमिट्स को बहुत पुश करते हैं कि नहीं तू पी ले यार, एक पैग और लगा ले, तू पी लेगा तो कर लेगा. ये सब चीजें मैंने बहुत देखी. बट दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस. लाइक इन दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन विद यू शुभम, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट योर friends are the highlight of your journey है. Like they have helped you through thick and thin. और especially अपने दोस्त की उल्टी साफ करना, it's like पास हो गए वो. मतलब वो बिल्कुल फ्रेंडशिप टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है. Yeah, that's true. तो उसके अलावा कोई ऐसी सी चीज़ जो तुम ऑडियंस से या जस्ट टीवी के व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हो. दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड टू यू. जो आप अपनी एक इनसाइट, एक ऐसी मेमोरी या कुछ ऐसा लोगों को कहना चाहते हो जो आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है. मेरी जर्नी अभी तक की इतना टाइम नहीं हुआ है पर मैं पता नहीं एडवाइस देने के लायक हूँ या नहीं. बट स्टिल आई विल से दैट टू माई यंगर सेल्फ, इफ दैट पॉसिबल, दैट डोंट लूज होप. ये जो बुरे दिन हैं वो टेम्परेरी हैं, और जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बी ब्रेव, डोंट डरो मत चीज़ों से. अगर जिस चीज़ से डर लगता है, जो आपको पता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, जस्ट फेस इट. I was afraid to communicate. I was afraid to be in this situation if I'll talk 1 year earlier. So yeah, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट था. बट मैंने हिम्मत करी है और कर रहा हूँ अभी तक. तो मैं अपने आप को यही सलाह दूंगा, या फिर जो न्यू कमर यहाँ पे आ रहे हैं, जस्ट बी ब्रेव, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप. Amazing. Thank you so much for wonderful insight. Be brave, don't lose hope and never give up. And communication barrier, ये सब कुछ यहाँ पे आके खत्म हो जाता है. बस अपने आप पे काम करते रहो. Show resilience. Make sure that you're working on yourself every single day and learn from the lessons. So thank you once again, and I wish you all the very best. And I hope कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है वो चलता रहे और आप फिर अगले साल आएँ कुछ नई अचीवमेंट्स के साथ, कुछ नई इंसाइट्स के साथ. और तब तक के लिए thank you so much everyone who have attended this and who watched this show. I'll see you next time in the same podcast, The Canadian Dream. Thank you. Thank you.